Good morning everyone, Sat Sri Akal and copy to all. Today is the December 18th and I am going to Gwalior. Yes, Gwalior. I've been thinking to visit this place. I visited a long back, probably in my teenage, not even a teenage, I was like probably a teenage, the beginning of the teenage, and somehow situations just rolled up like a way that this plan is automatically made up. So I'm going to Gwalior because of the reason I'm going to visit a Gurudwara Sahib called Bandi Chhod. That Gurudwara is a historical Gurudwara and it has a lot of importance in our religion, and in order to explore it, because when I visited when I was teenage, I was like probably not aware about the entire history. In a layman language, what my parents told me, what my grandfather told me, that Gurudwara belongs to Chevi Padshahi, Shri Tan Tan Har Guru Gobind Singh Ji. So there is a history behind it, and I will explain it when I will be there. So as if now it's a beautiful foggy morning, and it is a dangerous foggy morning. इससे पहले when I started from my place to until this place is totally clear, but now the fog is on the road and it's gonna reduce my speed. Well, I have crossed the Mathura and Agra is just few kilometers, I believe 33. टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा. मेरे को लग रहा था कि like I don't know, like it's gonna be taking us 6 hours. So टाइम बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा था. शाम को कल रात को जब मैं मैप देख रहा था, तो I believe that was due to the traffic or probably the weather condition, the fog basically. अभी बिल्कुल क्लीन है, रास्ता बिल्कुल क्लीन हो गया है. बीच में कोई मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का पैच रहा होगा जिसमें टोटल फॉग था. विजिबिलिटी बिल्कुल 20% थी, 40 से भी 30% आ गई थी बीच में कहीं जगह पर. बट सो फार अभी तक सब बढ़िया है. रात को ढंग से सो नहीं पाया बिकॉज आई वाज वर्किंग टिल 2 o'clock एंड देन उसके बाद में एकदम अचानक जब मैंने बैग भी पैक नहीं किए थे मैंने, क्योंकि सडनली प्लान बना और मैंने कहा जब बन गया तो अब इसको एग्जीक्यूट कर दें. सो रात को फिर मैंने काम फिनिश करने के बाद जल्दी से बैग पैक करा. 1 घंटा उसमें लग गया होगा. सामान सारी चीज़ें इकट्ठे करी और जो चीज़ों को ड्रोन को लगाया चार्जिंग पे, बैटरीज को लगाया चार्जिंग पे, गोप्रो को लगाया चार्जिंग पे, सारी की सारी वायर्स, माइक, एवरीथिंग सब कुछ प्रॉपर रखा बैग के अंदर ताकि कुछ भूल ना जाऊँ. सब चीज़ों को मैंने लाइन करके रखा ताकि सुबह बस उठो, सामान उठाओ और निकल जाओ. डिस्टर्ब नहीं करना किसी को बिकॉज मॉम डैड सो रहे होंगे. तो वही चीज़ हुई. आई गॉट अप लाइक अराउंड 5:30 और 6 o'clock आई वाज ऑन माय वे. फोटो सेशन कर लिया. आई वाज जस्ट पुल्ड ओवर. मैंने सोचा चलो उतर के ड्रोन उड़ाता हूँ. The wind blast was so high that the drone was not getting stable at one place, and I don't wanted to take a risk. And as soon as I took off, it just went straight away, and I could see that it's gonna go far away and I wouldn't be able to get it back, and I just crashed it into the plants. It's better to lost the drone. I crashed it, but luckily वो plants के ऊपर ही गिरा, बच गया, कुछ नहीं हुआ, उड़ रहा है.
उसके बाद ही मैंने कोशिश करी, बट आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। इसका इट्स अ हाईवे एंड किसी की गाड़ी के उड़ते हुए आगे सामने आ जाए, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। दिस हाईवे इज़ वेरी नैरो एंड काइंड ऑफ अ कॉम्पैक्ट हाईवे। इट्स अ डबल लेन बट काइंड ऑफ अ कॉम्पैक्ट हाईवे। Hello, finally reached at hotel, checked in, and very tired. Not tired as because of a driving. I'm tired because I couldn't able to sleep last night. So I'm gonna take some nap. So today's plan is to visit a fort, Gurudwara Sahib, and what other places that I can visit there. So that's what I'm gonna do today, and let's see if I will be able to cover it up all in a sufficient time. Then I will heading back to Gurgaon. फाइनली मैंने यहाँ पर आके दर्शन कर लिए हैं गुरुद्वारा साहिब के। एंड जो चीज़ यहाँ पर आके फील होती है सुकून, इट इज़ नेक्स्ट लेवल।
दूसरा द रीज़न आई वांटेड टू कम हेयर इज़ जस्ट बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, बहुत टाइम बाद। मैंने पहले भी बताया कि लाइक आई वाज लाइक अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड जब मैं यहाँ आया था, तो उसके बाद अब आया हूँ एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज है, सराउंडिंग्स काफ़ी चेंज हो गई, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया और यू कैन सी इट। ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छे आ गए, जो मैं चाहता था वो हो गया फाइनली। सो द मेन रीज़न वाज टू जस्ट टू visit here and take the blessing. That was the most important thing for me. और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। मुझे एक और जगह देखनी है जहाँ पर there was a prison where all the rajas was used to kept it. I just came to a Mansingh Palace just to see it, that prison where all the rajas were used to prison. फाइनली वो जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पर उन राजाओं को रखा जाता था। सो दीज आर दी ओल्ड पिलर्स, टोटल 82 पिलर्स आर हियर एंड दे वर टाइड अराउंड विद दीज पिलर्स एंड दे वाज यूज्ड टू स्टे हियर एंड यू कैन सी सो इट इज़ काइंड ऑफ बहुत किन हालातों में वो उस वक्त यहाँ रहते होंगे, बंधे हुए चेनों से। एंड यू कैन इमेजिन इट लाइक यू नो दिस इज़ अ टोटल ओपन एरिया और कुछ नहीं है यहाँ पर, इट्स जस्ट ये पिलर्स जिनके साथ वो बंधे रहते थे सुबह शाम। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उनकी एट दैट टाइम जब गुरु साहिबान यहाँ पर आए और उनको छुड़वाया, अपने साथ लेके गए। सो when Guru Sahib about to leave, they said that he wanted to जब गुरु साहिब यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये 52 राजा में ये जितने राजा हैं मैं इनको अपने साथ लेके जाऊँगा। तो उस टाइम के एम्परर ने कहा कि ठीक है आप लेके जा सकते हो, पर जितने आपका दामन पकड़ के आपके साथ चले जाएंगे वो आपके साथ जा सकते हैं। सो ही थॉट दैट ही इज़ क्लेवर, बट अगेन the cleverness in front of Guru Saiban wouldn't work, so even he was more clever than him. So what he decided to do is that he asked someone to make a chola for him which have a 52 stripes on it. So जब वो जाने लगे, so he put that chola on and every 52 rajas just pulled that one strips and they just all went out with him. So emperor couldn't do anything because he himself said that जो आपका चोला पकड़ के चला जाएगा वो जा सकता है। सो 52 के 52 राजा इस तरह रिहा हो गए थे उस दिन बाबा जी का चोला पकड़ के। तो वो सब उनके साथ इस किले से इस प्रिजन से बाहर निकल गए थे। एंड दैट डे वॉज दी दिवाली एंड इसीलिए सिख इतिहास में दिवाली का जो दिन है वो बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एंड दैट्स द रीज़न इवन वी डू अ दीपमालास एज वेल एट गुरुद्वारास बिकॉज एट दैट डे गुरुजी वापस अपने घर आए थे
और लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई थी उस वक्त। सो दैट इज़ द हिस्ट्री अबाउट ऑफ दिस प्लेस। एंड इसी के साथ मेरी जो जर्नी है, द रीज़न आई केम हेयर टू ग्वालियर इज़ जस्ट टू सी दिस प्लेस, एंड नाउ इट इज़ फुलफिल्ड एंड आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप दैट यू ऑल will be good, staying happy, stay positive, and I'll see you until we meet. Bye.